कैमरा लुक मैम। राजेश क्या इंग्लिश हिंदी मिक्स? थोड़ा सा बूम नीचे रखो। प्लीज आ जाइए। ओके दीपिका मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप जो है एक एंटरप्रेन्योर भी है, बहुत लोगों को इंस्पायर भी करते हैं, क्या कहेंगे एस्पायरिंग शी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है बिकॉज इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, शीप्रनर्स हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट टू गिव देम दैट लाइट एंड आई एम सो हैप्पी शी इज़ नॉट जस्ट पिकिंग पीपल फ्रॉम वन फील्ड। इतने सारे फील्ड से मैंने सारा देखा उन्होंने फ्रॉम टैरो टू स्किन टू हर एक फील्ड में किसी ना किसी को चूज़ किया एंड आई थिंक दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट to have a platform where you're actually giving them, because उनको एक हौसला मिलता है जब आप कोई अच्छा काम कर रहा है उस फील्ड में एंड आप उनको एक अवार्ड देते हैं, they get motivated to do even better and I think that also inspires a lot of other women out there who are looking at these women for inspiration. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, I would. में कैसे थॉट आया? We founded this thing say about a year ago. एक साल पहले ही किया है हमने इसको और it is about getting more and more strong women together. जितनी ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ में आई हैं, यहाँ पर भी हैं, वो सारी ही और सभी दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन फील्ड्स ऑफ वर्क एंड पीपल हैव जॉइंड अस फ्रॉम अहमदाबाद, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम सूरत and even from other cities like Pune and from Mumbai. So I'm really thankful to them and this is a platform wherein we are encouraging women to do and come forward and support other women and that's how the campaign is all about. So I would look forward to have even more support from everyone who is joining us even in coming months. So we are going to launch our magazine which is Aspiring She and that's going to launch. We have already done our cover shoot with Nandita Mahatani and she is on the cover and it's going to get unveiled very soon, having top 20 women entrepreneurs also to look up to in 2019. So that's the main inside story in that and we are going to have a lot of launch campaign and everything and we are going to launch our breast campaign nationwide campaign in this show itself. So that also I would say that women should come forward and they should talk about it and help each other and support each other. So that's what the platform is all about. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Thanks a lot. मेंस भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जो है अभी आने वाले टाइम में, तो कितना प्राउड फील करती है? I think I'm very proud because without my father, husband or my brother, I couldn't do what I'm doing. They give me the wings to fly. और इतना ज़रूरी है आपको उनका support लेना because at the end of the day, they feel happy with every award that I bring back home or with every event that I do. They feel more happier than I am. So I think unka support, I'm very lucky to have 3 very encouraging people in my life. Right. As a woman, आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, Me Too movement जो शुरू हो चुका है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो कंट्रोवर्सी भी चल रहा था तनुश्री और नाना जी के बीच में कुछ? See, I think women के ऊपर जब भी there is something like that, I think the entire industry should stand up and support them. That's all I'd like to say, that everyone should be there in full support. Okay, ma'am. And any upcoming project you would like to share? There are a lot of upcoming projects. We're working on some really interesting ones in the pipeline. But announcement के लिए आप लोग को वापस बुलाऊंगी एक बारी. Okay, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you so much. सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपको मेरा नाम याद है। बेसिकली होता है कि कर्टन्स के पीछे जो लोग काम करते हैं उनके नाम याद करने में बहुत साल लग जाते हैं, तो यकीनन मैंने बहुत काम किया है जो आपको मेरा नाम याद है। थैंक यू सो मच। देखो, एस्पायरिंग शी अपने आप में नाम ही स्पेसिफिक है कि एस्पायरिंग शी मतलब इंस्पायर करने वाली औरत। इट्स वेरी क्लियर, इसमें बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। तो आज यहाँ पर हर वो औरत जिसने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ किया है एंड एवरी सिंगल वुमेन जिसकी आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरीज अट्रैक्ट नहीं करेंगी, उनकी फेलियर के पीछे भी क्या कहानियाँ, और उससे जैसे मैंने भी लाइफ में मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं और एवरी फेलियर
made me understood, okay, this is wrong, this is the right way. So that's how you achieve in life. और मैं बिल्कुल believe नहीं करती इस बात में कि हर मर्द के पीछे हर मर्द की सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है. मैं समझती हूँ कि हर औरत के पीछे उसका हाथ होता है और हर मर्द के पीछे भी होता है. तो बेसिकली संसार को चलाने वाले ब्रह्मा जी ने कहा है साक्षात औरत है. तो एस्पायरिंग शी वुमेन्स को डेडिकेटेड, उनके अचीवमेंट, उनकी सक्सेस को डेडिकेटेड एक अवार्ड है. और ऐसी जो पहल है जो हमारी सौम्यता जी ने, जो अरविंद जी, ये लोग ऐसे हैं जो बेसिकली चाह रहे हैं कि अब हमारे सेलेब्स के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर, मैं थोड़ा सा इलाबरेट करूंगी आपको, 2 कैटेगरी आती है, एक बॉलीवुड, दूसरा क्रिकेट. लेकिन आप मुझे बताओ, बॉलीवुड को सिर्फ 4 स्टार छोड़ दो, अगर आप 4 एक्टर्स छोड़ दो, या फिर क्रिकेटर्स में से वो जो 11 लोग फील्ड पे खेलते हैं, वो जो 1000 लोग हैं जो अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, वो जो टेक्नीशियंस है जो, वो कहाँ हैं? दे आर ऑल्सो स्टार, इक्वली स्टार. सो उनको, जो कर्टन्स के पीछे लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, उनको इस तरीके के अवार्ड्स को देना और इस तरीके से उनके अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने लाना अपने आप में बहुत बड़ा क्रेडिट है. एंड आई एम सो थैंकफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. रिधिमा मैम, सबसे पहले एस्पायरिंग शी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने इंस्पायर होते हैं आप इस स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन से जो इनिशिएटिव लिया है इन्होंने? एस्पायरिंग शी इज़ डूइंग, आई थिंक, अ वंडरफुल इनिशिएटिव टुवर्ड्स एम्पावरिंग विमेन. एक औरत में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है टू अचीव सो मच इन लाइफ, बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मल्टीटास्क करते करते औरत खुद को प्यार करना भूल जाती है. मेट्रो सिटीज़ में पढ़ी लिखी लड़कियां भी एक दूसरे को एल्बो करके गिरा देती हैं. तो ये जो आज इस मंच पे मैंने सभी अचीवर्स को बोलते हुए देखा है, ये सब कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन कर रही है सोसाइटी में. हम खुद को प्यार नहीं कर पाते, हम दूसरे को क्या एम्पावर करेंगे? तो आई थिंक ये एक कुछ हम लोग सब जो मिले हैं आज संडे आफ्टरनून, ये एक अच्छा ज़रिया है. बिकॉज 1-on-1 जब आप एक दूसरे को एम्पावर करते हो, और जैसा कि किसी ने कहा था कि एम्पावर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को हायर कर लो. मेरी मम्मा, जैसा कि हर बच्चे के लिए माँ सबसे बड़ी और सबसे पहली टीचर होती है, मेरी मॉम मल्टीटास्कर है, लेकिन मॉम ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि तुम सिर्फ यही कर सकते हो या वो कर सकते हो. आज भी इतना अचीव करने के बाद एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा सफलताएँ भी देखी हैं. और मम्मा बस यही बोलती है कि सूरज की रोशनी तो वही रहती है, सिर्फ बादल आते जाते रहते हैं. तो मेरी माँ मुझे एम्पावर करती है, मैं उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ. मैं अपनी बाइयों से बात करती हूँ. क्यों? क्योंकि ये जो मंच जो कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम भूल गए इसे, तो ये वापस पोक करके हमें बोल रहे हैं डू योर बिट, बिकॉज वी ऑल रिक्वायर इट. एंड इंस्पायरिंग शी बाय एक्नॉलेजिंग द अचीवमेंट्स ऑफ सच विमेन, पावरफुल विमेन हु हैव अ वॉइस. बिकॉज सब में ये दम नहीं होता. मॉडर्न हर कोई होता है, लिटरेट हर कोई होता है, लेकिन अपनी बात को कहना, और वो भी मजबूती से कहना, हर कोई नहीं कर पाता है. तो ये आज जो औरतें जुड़ी हैं, उन सबकी एक आवाज़ है. और अगर हम एक दूसरे की कहानी सुनकर प्रोत्साहित हो सकते हैं, अगर ज़िंदगी में हमारे शायद 1% कमी भी है, तो आज आप लोगों ने वो जज्बा वापस से मुझे उचका दिया. तो इंस्पायरिंग शी, थैंक यू सो मच. बिकॉज ये अप्रिशिएशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है. आपको, मुझे, इनको सभी को अप्रिशिएशन अच्छा लगता है. एंड आज इस मंच के ज़रिए मुझे ऐसा लग रहा है कि there's so much light. I mean, इसके बाद I can see a lot of change already, क्योंकि मैंने अपने अंदर ये महसूस किया है. और एक एक महिला ने जैसे अपनी बात रखी, I think they directly connected with the souls. Yeah. We have to go now. We have to Yes. break it for now. Thank you. Thank you so much. Yeah. About the Aspire She and what it's inspiring. सबका स्वागत है. एंड मेरा नाम सुजाना बैनट है, मैं एक्ट्रेस हूँ. और ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि मैं यहाँ इनविटेशन मिला एस्पायरिंग शी इवेंट के लिए. एंड मैं इतने सारे कहानियाँ सुना है, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी एस्पायरिंग. तो आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू बी हियर. राइट, आमिर खान के साथ आपने काम किया है, टक्स ऑफ हिंदुस्तान आ रही है, क्या कहना चाहिए? आमिर खान और टक्स ऑफ हिंदुस्तान एस्पायरिंग शी इवेंट में मैं क्या बोलूँ. I wish him all the best. बहुत excited है. The posters are looking great. I wish him all the best. Cheers to Amir. Any of the upcoming projects you would like to share?
नहीं, अपकमिंग प्रोजेक्ट इज़ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और मैं उस बारे में अभी नहीं बात कर सकती हूँ क्योंकि पूरे प्रमोशंस नवंबर से है, एंड आई देन यू कैन टॉक टू मी एंड आस्क मी एनीथिंग। थैंक यू। हाँ हाँ जा करते जाओ कभी बस पैकअप पैकअप कर काम करेगा नहीं एक मिनट को बैठ मैं जी सबसे पहले तो आपको हमेशा से वुमन लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, क्या कहना चाहेंगे एस्पायरिंग शी के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा लगता है जब विमेन अवार्ड होता है या एस्पायरिंग शी ऐसे किसी नाम के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि अगर इतने सारे लोग व्हेन सो मेनी पीपल आर लुकिंग अप टू यू, आपको अच्छा ही अच्छा करना है आगे जाकर भी। तो हाँ, इट्स एन इंस्पिरेशन एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील, और अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। एज ए वुमन आपकी लाइफ में ऐसी कोई वुमन है जिससे आप इंस्पायर होती हो, उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें आप? ऑफ कोर्स आई थिंक हर बेटी के लिए उसकी माँ एक हीरो है, मेरे लिए भी है, मेरी माँ ही है जिन्होंने आज मैं जैसी भी हूँ उन्होंने मुझे बनाया है। उन्होंने एक चीज़ हमेशा सिखाई है कि गिव अप ये चीज़ क्या होती है इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है। वो हमेशा मुझे यही बोलती रही, एक ही लाइन कहती, तू तो बहुत स्ट्रांग है, तू तो बहुत स्ट्रांग है। तो इस लाइन ने इतना प्रेशर बना कर रखा है हमेशा कि गिव अप क्या होता है मुझे नहीं पता, और हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो ये जो चीज़ है ये मुझे मेरी माँ से मिली है, वो मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है और मुझे हमेशा एक पुश दिया है कि मैं आगे बढ़ते रहूँ। राइट, जैसे हम सब जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो और वुमन के लिए हमेशा से बेबाकी से बात करते हो, तो हमारे देश में जो है मी टू मूवमेंट शुरू हो चुका है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तनुश्री और नाना पाटेकर, क्या व्यूज़ है आपके अगर उस बारे में? मैं सच बताऊं तो मैं वहीं पर बोलती हूँ जहाँ पर मुझे पता होता है। मैं नाना पाटेकर की दोस्त हूँ, ना मैं तनुश्री की दोस्त हूँ। मुझे सच नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हुआ। हाँ सुन रही हूँ बट फिर भी मुझे डिटेल में नहीं पता, तो मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हर एक औरत को हक है कि वो अपनी आवाज़ उठाए हर एक चीज़ में और अपने हक के लिए लड़े, चाहे वो आज हो चाहे वो 10 साल बाद हो। लेकिन हाँ, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो किचन की लड़ाई हो, चाहे वो देश की लड़ाई हो, चाहे वो अपने काम की लड़ाई हो। लड़ना बहुत ज़रूरी है, अपने हक के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, और वो हिम्मत जितनी जल्दी आपके अंदर आए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच। इंस्पायरिंग शी इनिशिएटिव के बारे में और एज ए वुमन आप क्या सोचती है, वुमेन्स को फेलिसिटेट भी किया जा रहा है वहाँ पर, कितना प्राउड फील कर रही है? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ वुमन ओनली आई एम प्राउड बिकॉज आई थिंक ब्लेसिंग होती है गॉड की। वुमेन हैव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन जनरल इन लाइफ। एस्पायरिंग शी एज अ नेम सेज, एस्पायरिंग शी जो लाइफ में कुछ बनना चाहती है शी, तो उनको मोटिवेट करने के लिए जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है सौमिता तिवारी ने विद मेजर अरविंद तिवारी, बहुत ही इंस्पायरिंग है। बिकॉज एक्चुअली इन लाइफ में मैंने कभी इतने सारे अचीवर्स को एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ नहीं देखा है। तो जब आप सक्सेस स्टोरी सुनते हैं लोगों की, आप सिर्फ इंस्पायर ही होते हैं। यू गेट रियली मोटिवेटेड टू डू बेटर एंड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड कनेक्शंस होती है, नेटवर्किंग होती है, और कुछ अच्छा करे, बेहतर करे और लोगों के लिए। एंड आई लव मैन, आई ऑलवेज से, एंड आई लव वुमेन, एंड आई थिंक टुगेदर वी कैन मेक अ बेटर इंडिया एंड बेटर वर्ल्ड। Any message you would like to convey to all the women? Like I said, women should have a voice and choice. So you need to have a voice, and आपके पास choices होती हैं। अगर आप लाइफ में दो चीज़ें कर लेते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। Don't wait for things to कि कुछ वक्त के बाद कुछ करूँगा। वक्त किसी के पास नहीं है, बहुत कम वक्त होता है लाइफ में। तो जो भी ड्रीम है आप पूरे दोनों बाहें फैला के go ahead and just live it up and achieve all you want to do in life. सब हो सकता है लाइफ में। You are capable of doing everything in life. Thank you. Thank you.
फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पायरिंग शी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एज अ वुमन कितना प्राउड फील करती है जब वुमन को फेलिसिटेट किया जाता है? ऑल टुगेदर ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, जो इनिशिएटिव जो लिया है सौम्यता तिवारी एंड ऑफ कोर्स मेजर आनंद तिवारी ने, इट्स लाइक ऑसम प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द वुमेन स्पेशली एंड वी ऑल आर अवेयर नाउ यू नो कि जो वुमेन एम्पावरमेंट हम जो बात करते हैं, हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम इस चीज़ को प्रूव भी करते हैं विद ऑल द डिग्निटी एंड और हमने हर कोई यू नो वी आर लाइक फेलिसिटिंग ऑलमोस्ट लाइक 100 वुमेन ओवर हियर। तो हर किसी ने अपने प्लेटफॉर्म में, अपने फील्ड में बाकायदा बहुत ही अच्छा काम किया है एंड ये जो अचीवमेंट है, और जब उस अचीवमेंट को हम सराहते हैं इस तरीके से, देन येस वी रियली फील प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। बिकॉज पहले के ज़माने में हम जानते हैं यू नो हम कितना भी अच्छा करें, कुछ भी करें, हमें हमेशा ये बोला जाता था कि कुछ भी कर लो, लाइक बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए वुमन, कुछ नहीं होने वाला। इवन जो पहले के ज़माने में होते थे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं अलाउड थी। तो आज अभी जिस टाइम पे पढ़ाई लिखाई नहीं अलाउड थी, आज लड़कियां, आज वुमेन आज ऐसे लाइक यू नो आई कुड से मुकाम में है जहाँ पे इस तरीके से लाइक फेलिसिटेट किया जा रहा है। सो ये अपने में बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात है। सो एज अ वुमन आपकी लाइफ में बहुत सारी वुमन आई होगी, तो आपको किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? हालांकि आप भी बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, आपने भी, तो आपको किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? मेरी मदर। ऑनेस्टली माई मदर इज़ माई इंस्पिरेशन एज वॉज लाइक बचपन से ही, लाइक एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ लिटिल बिट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। तो येस, माई मदर इज़ द वन जिन्होंने मुझे हर एक चीज़ सिखाई है अपने लाइफ में। पेशेंस, इमोशनल बैलेंस, लाइफ, पर्सनल लाइफ को कैसे हैंडल करना होता है, अपनी लाइफ को किस तरीके से हैंडल करना होता है, सेक्रीफाइसेस ऑफ कोर्स। सो येस, फॉर मी इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज विल बी माई मदर, जिन्होंने मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट किया है और हर बार मुझे यही सिखाया है कि लाइफ गोज़ ऑन, इट मूव्स ऑन एंड इट्स ब्यूटिफुल नो मैटर व्हाट। राइट, जैसे आपने कहा कि वुमेन्स को आजकल उस तरह का दर्जा भी दिया जा रहा है, तो मीटू मूवमेंट भी हमारे देश में स्टार्ट हो गया है और तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर की कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा आपने। अगर उस बारे में कुछ कमेंट करना चाहे आप, क्या व्यू पॉइंट है? नहीं, नो कमेंट्स ऑन दैट, बट येस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, किसी के पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर किए बिना मैं इतना कहना चाहूँगी कि वी शुड नॉट encourage few things और demoralize few things, जिसके वजह से अगर एक्चुअली में वो इंसिडेंस हुआ है तो किसी लड़की को या किसी वुमेन को वो हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए सामने आने के लिए, जो हमारे कंट्री में बहुत सालों से होती आ रही है। लाइक यू नो मैनी ऑफ गर्ल्स और वुमेन ये सारी चीज़ें फेस करती है, बस सामने सोसाइटी में आती नहीं है, बिकॉज पता नहीं सोसाइटी उस बारे में कैसे रिएक्ट करेगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो एक्चुअली हुआ है सच इंसिडेंट, उस इंसिडेंट को सामने लाने के लिए उतनी हिम्मत, उतनी एनकरेज आप रखो। एंड आई डोंट थिंक सो, आई रियली फील बैड अबाउट दोज ट्रोलर्स यू नो, जब ट्रोल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि कोई भी लड़की या कोई भी वुमेन, सी देयर आर फ्यू, मे बी, कुड बी, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि ऐसी कोई भी लड़की या कोई भी वुमेन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी को दाव पे लगा के कोई आपका फेम या आपकी पब्लिसिटी या आपके कमेंट्स या आपके सिंपैथी के लिए वो नहीं करती हैं। सो समहाउ आई फील कि जो ट्रोलर्स हैं वो बिना बात के ट्रोल करने से ज़्यादा ये है, अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है आप चुप बैठिए, और अगर आपको पता है देन इधर आप सपोर्ट कीजिए या मत कीजिए, बट बिना बात का आप ये मत बोलिए कि पब्लिसिटी के लिए कोई कुछ भी करता है। सो दैट्स नॉट ट्रू। And on a lighter note, where can we see you next? Any upcoming project you would like to share with us? Definitely you'll come to know very soon, I'm sure. So yes, till then थोड़ा बहुत वो सस्पेंस और सरप्राइजेस रहने चाहिए लाइफ में। अगर लाइफ में सस्पेंस और सरप्राइजेस नहीं रहे ना, देन लाइफ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है। सो यस। सर, Hi, Major Arvind Tiwari. Nice meet you. Same here. Same. Sir, I'm anything you really glad. would like to say to audience about this initiative and Okay, this is about aspiring she, so it is more appropriate for women to talk about it. But I feel that even men have equal responsibility towards uplifting the status of women in the society.
and all those of you behind the camera, you all have mothers, you have daughters, you have sisters in your houses, respective houses. So, you know, just let them loose, just let them take the flight of their imagination and let them do whatever they want to do. Let me tell you, women are very responsible. Your daughters, your sisters, everybody is very responsible. They know what is right, what is wrong, and they will never let you down. So, you should make efforts to make this country better in terms of gender equality index and all that stuff, because that is why we are lacking. इसलिए हम विकसित देशों से काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा या फिर 40 से 50% जो भी महिला पुरुषों के मुकाबले होता है जनसंख्या में, अगर वो चीज़ ठीक से टैप नहीं की जाती है तो वो एक तरह से ऐसा होता है कि 50% पोटेंशियल आपके देश का वेस्ट हो गया, तो आपका आउटपुट जो है एज अ कंट्री काफ़ी उसमें अफेक्ट हो जाएगा, एंड देन वी विल कंप्लेन कि हम विकसित देशों से पीछे हैं और हम ऐसा है. तो मेन फैक्टर इन दिस इज टू make use of that untapped potential of more than 40 to 50% population of this 125 crore strong country. You need to let your women do what they want. They are very responsible, they know where they are heading, and they will always bring good name and accolades to you. Believe me, trust me, this is what I have done, this is what I advise everybody of you to do.